السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে বন্ধুমুখর কুরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন। এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গজল পরিবেশন করার জন্য মুস্তাফিজুর ভাইকে ডেকে নেব। মুস্তাফিজুর ভাই, আপনি আসুন এবং গজল পরিবেশন করুন। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نات رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله نوري نور العالم নবী আসিলেন ধরায় জগৎ হলো উজালা সাল্লাল্লাহ নূরে নূরুল আলা নবী আসিলেন ধরায় জগৎ হলো উজালা নবী আসিলেন ধরায় জগৎ হলো উজালা সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন শাফিউল মুজনাবিন রাহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মুজনাবিন রাহমাতুল লিল আলামিন যাহার পাক নামের তাজিম করে যাহার পাক নামের তাজিম করে আল্লাহ তাআলা নবী আসিলেন ধরায় জগৎ হলো উজালা নবী আসিলেন ধরায় জগৎ হলো উজালা সেদিন থাকবেন হাজির ওই কঠিন হাসরে হাজির থাকবেন তিনি ওই মিজানের ধারে হাজির থাকবেন তিনি ওই মিজানের ধারে ইয়া নফসি ইয়া নফসি ইয়া নফসি ইয়া নফসি করবেন সকল নবী একা বলিবেন তিনি ইয়া উম্মত উম্মতি একা বলিবেন তিনি ইয়া উম্মত উম্মতি সাল্লাল্লাহ নূরে নূরুল আলা নবী আসিলেন ধরায় জগৎ হলো উজালা নবী আসিলেন ধরায় জগৎ হলো উজালা মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর গজল পরিবেশন করলেন ওনার সুরের মাধুর্যের দ্বারায়। এরপরে আমরা সবাই অবগত আছি যে আমাদের মধ্যে
আমাদের শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় শিক্ষক ডক্টর মাওলানা উবাইদুর রহমান সাহেবকে ব্যাচ দিয়ে সভাপতি পদে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রিয় মুহাফিজ ভাইকে অনুরোধ করব, আপনি ব্যাচ দিয়ে আমাদের প্রিয় শিক্ষককে গ্রহণ করে নেবেন। এরপরে আমরা আমাদের যে সমস্ত ফারিগিন ছাত্র রয়েছে, এ সমস্ত ফারিগিন ছাত্রের সম্মানার্থে আমরা ব্যাচ দিয়ে আমরা গ্রহণ করে নেব। এইগুলো সহযোগিতা করার জন্য মাহবুব আলম ভাইকে ডেকে নেব, উনি আসবে, এসে সবাইকে ব্যাচ করিয়ে দেবে। আমি এক এক করে নাম ডাকবো, অনুরোধ করে আপনারা আসবেন এবং ব্যাচ সংগ্রহ করবেন। জুবাইর লস্কর, জুবাইর লস্কর, নাজিমুল হুসাইন, আনোয়ার সর্দার, আরিয়ান লস্কর, আরিয়ান লস্কর, শামীম মন্ডল, শাহিদুল ইসলাম, তাফাজ্জুল হক, রিয়াজ লস্কর, মুজাফর বৈদ্য, শেখ শামস তাবরেজ, রিয়াজ গাজী, আজহারুল গাজী, আশরাফুল ভাই, নাদিম আহমেদ, নাদিমুল হক ভাই, সাবিত সাপুই, সাবিত সাপুই, এনামুল সাপুই, तारिक अनवार, तारिक अनवार, दिलवार हुसैन, दिलवार हुसैन,
রশিদ আহমেদ ভাই, আপনি এখানে আসুন, ব্যাজ নিয়ে যান। আব্দুল কাদের, मोहम्मद राकीम, आगे बैठ शाहनवाज, मेहताब आलम, हुमायूं कबीर, मोहम्मद जहीरुद्दीन, मोहम्मद रूहुल अमीन, मोहम्मद मुज़क्किर, आगे बैठिए, कौन आगे सीट। এরপরে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সম্মানীয় মুহাফিজ ভাইকে ব্যাজ দিয়ে বরণ করে নেবেন। মুহাফিজ ভাই, আপনি আসবেন এবং ব্যাজ নিয়ে আপনি আপনার আসন গ্রহণ করবেন। এর পরে আমাদের সম্মানীয় রাকিবুল ভাইকে ডেকে নেব। এরপর মাহবুব আলম দাস্তাগীরকে ব্যাজ পড়িয়ে দেওয়ার জন্য শামীম ভাইকে ডাকবো। শামীম ভাই, আপনি আসবেন এবং মাহবুব আলম দাস্তাগীর ভাইকে আপনি ব্যাজ পড়াবেন। মাশাআল্লাহ, আমরা ব্যাজ দিয়ে বরণ করার পর্ব শেষ করতে পারলাম। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, আমরা সবাই অবগত আছি যে আমাদের একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল, যে প্রতিযোগিতার ফলাফল এখনো জানানো হয়নি। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল এখনই জানানো হবে। আমরা এখনই এই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমরা দেখে নেব কোন সমস্ত ব্যক্তিরা যারা প্রতিভা সম্পন্ন, অর্থাৎ কারা কিরাত, বায়ান এবং গজলের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ওই জন্য সরাসরি আমরা ফলাফল ঘোষণা করব। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। কিরাত বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মুজাহিদ মল্লিক। এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন মোহাম্মদ উমাইর। এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন রিয়াজ গাজী। এরপরে আমরা সরাসরি ফলাফল জেনে নেব বায়ান বিভাগে। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আজহারুল গাজী ভাই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন তানভীর আলম ভাই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন শহীদুল ইসলাম ভাই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এবার আমরা সরাসরি চলে যাব গজল পর্বে।
গজল পর্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মুজাফফর বৈদ্য। গজল স্থানে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মুজাফফর বৈদ্য এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন রিয়াজ গাজী। ওই জন্য আমরা সবাই, যে সমস্ত আমাদের সাথী ভাই এই সম্মানমূলক একটা স্থান অধিকার করেছেন, সবাই আমরা ধীরে ধীরে শুকরিয়া আদায় করব এবং তাদের জন্য দোয়া করব, তারা যেন ভবিষ্যতে আরো বড় বড় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। এরপরে আমরা প্রাইজ দেওয়ার পর্ব শুরু করব ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে। আমরা এই পর্ব শুরু করার পূর্বে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন তাদেরকে জানাবো, আপনারা আপনাদের কাজে একটু ধ্যান দেবেন, আপনারা সহযোগিতা করবেন। ওই জন্য স্বেচ্ছাসেবক ভাইদেরকে জানানো যাচ্ছে যে আপনারা আপনাদের কাজে সম্পূর্ণ মন দিয়ে করবেন। ওই জন্য এখনই আমরা পুরস্কার বিতরণীয় সভা শুরু করব। প্রথম পুরস্কার অর্থাৎ পুরস্কারে তুলে দেওয়ার জন্য, সহযোগিতা করার জন্য মাহবুব আলম দাস্তাগীর ভাইকে ডেকে নেব, উনি সহযোগিতা করবেন। মাহবুব দাস্তাগীর ভাই, আপনি আসুন, এসে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করুন। কিরাত বিভাগের প্রথম পুরস্কার তুলে দেবেন আমাদের সম্মানীয় শিক্ষক ডক্টর মাওলানা উবাইদুর রহমান সাহেব আজহারুল গাজীকে। কিরাত বিভাগে মুজাহিদ মল্লিক ওনার অনুপস্থিতিতে আমরা ডেকে নেব মোহাম্মদ উমায়ের ভাইকে ডেকে নেব এবং মোহাম্মদ উমায়ের ভাইয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন আমাদের প্রাণের প্রিয় শিক্ষক ডক্টর মাওলানা উবাইদুর রহমান সাহেব। কিরাত বিভাগের প্রথম পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় মেহমানকে আমি অনুরোধ করব, আপনি প্রথম পুরস্কার মুজাহিদ মল্লিকের হাতে তুলে দেবেন। মুজাহিদ মল্লিক, আপনি আসুন, আপনি আপনার সম্মান গ্রহণ করুন। কিরাত বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন আমাদের রিয়াজ গাজী ভাই। ওই জন্য এই পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের সম্মানীয় মুহাফিজ ভাইকে অনুরোধ করব, আপনি এই পুরস্কারটি তুলে দেবেন। এরপরে আমরা সরাসরি চলে যাব বায়ান বিভাগে। বায়ান বিভাগে প্রথম পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব রাকিবুল ভাইকে। রাকিবুল ভাই, আপনি আসবেন এবং প্রথম পুরস্কার আজহারুল গাজী ভাইয়ের হাতে তুলে দেবেন। দ্বিতীয় পুরস্কার অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন তানভীর আলম ভাই। ওনার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আশরাফুল ভাইকে অনুরোধ করব। আশরাফুল ভাই, আপনি আসবেন এবং পুরস্কার তুলে দেবেন।
তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন শহীদুল ইসলাম ভাই। শহীদুল ইসলাম ভাইয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য শামীম ভাইকে অনুরোধ করব। এরপরে আমরা সরাসরি চলে যাব গজল বিভাগে। গজল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আমাদের মুজাফফর ভাই। ওই জন্য মুজাফফর ভাই হাতে প্রথম পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য তাফাজ্জুল হক ভাইকে ডেকে নেব। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন রিয়াজ গাজী ভাই। রিয়াজ গাজী ভাইয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য আনোয়ার ভাইকে অনুরোধ করব। আনোয়ার ভাই আপনি আসবেন এবং পুরস্কার তুলে দেবেন। আমরা সবাই জানি যে আমাদের মধ্যে একটা ছোট্ট প্রতিযোগী ছিল। সেই ছোট্ট প্রতিযোগীর হৃদয় জয় করার জন্য এবং উৎসাহ দেওয়ার জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার রেখেছি। সান্ত্বনা পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য এনামুল সাফুই ভাইকে ডেকে নেব। আপনি আসবেন এবং এই ছোট্ট প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়ে ওনার দিলকে আপনি জয় করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা পুরস্কার বিতরণীয় পর্ব সমাপ্ত করতে পেরেছি। এরপরে কবিতা আবৃত্তি করার জন্য নাজমুল হুসাইন ভাইকে ডেকে নেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাদুয়ার চত্বরে আজ খুশিতে ভরে প্রাণ, বিদায় এসে হৃদয় করে দুঃখ বহমান। নাদুয়া গগনে ইলমি সুবাস ছড়াই দিনী গান, যেখানেতে শিখেছি মোরা হাদিস ও কুরআন। মুহাফিজুল ইসলাম জ্ঞানে অটল, নম্রতাই অলংকার, নীরব থেকে মনকে তিনি জয় করে সবার। নিজামুল হক শান্ত ছেলে, বিনয়তা যার ঢাল, একাকী নীরব সাক্ষাতে হাসিতে ভরে ওঠে তার গাল। আলী আসগার শান্ত ভদ্র, বন্ধু সুলভ প্রাণ, মনের মাঝে নম্রতার ছায়া, মগজে দীপ্ত প্রাণ। রাকিবুল ভাইয়ের অল্প আগে মুখ হয়ে যায় লাল, হাসলে পরে মুখ দেখাই তার আলোতে উজ্জ্বল। জুবাইর যদিও গম্ভীর চোখে চিন্তার রেখা টানে, রাগ থাকে তবু মমতা লুকানো আছে তার প্রাণে। মাহবুবের আছে মিশুক স্বভাব, হাসিতে ভরা মুখ, ইলম আদবে সে খোঁজে ভবিষ্যৎ দিনের সুখ। দিলওয়ার হোসেনের জ্ঞানী মনোল নীরব ভাষাধীর, চিন্তায় জগৎ ঘুরে বেড়ায়, লাগে যেন সুফি পীর। আরিয়ান হলো একটু রাগী তবু হৃদয় সাদা, বন্ধুত্বে তার নাই তুলনা, ভুলবো না তোমায় দাদা। মুজাফফর হলো রসিক ছেলে, মজাই ভরা প্রাণ, রাগলে খানিক তেজি হলেও হৃদয়কে সবচেয়ে চান। রাগে দিল মনে ভালো এমনি আনিসুর, বন্ধু মাঝে জেগে ওঠে অসীম নিজ মায়া মমতার সুর। ইনাম ভাই যে অনাবাসিক, নীরব থাকে বাহিরে, মুখে হালকা হাসি, মজাই ফুর্তি তানার অন্তরে। সাবিত ভাইয়ের আনন্দ ভরা প্রাণ, কথায় হাসির রেশ, রাখলে মুখে থাকে দিলটা ভালোবাসাতে বেশ।
দুই রিয়াজ ও আনোয়ার আশরাফ আজহার শহীদুল। দুই রিয়াজ ও আনোয়ার আশরাফ আজহার শহীদুল নম্র স্বভাব, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রাণ, হাসি খুশি মনেরই ফুল। শামীম ভাই ও তাবরেজ সহ আছে তাফাজ্জুল। শামীম ভাই ও তাবরেজ সহ আছে তাফাজ্জুল। জ্ঞানে দৃঢ়, যুক্তিতে হিরো, হাসি খুশি হৃদয়ের ফুল। ভালোবাসা ভরা অন্তর আমার করে তাদের স্মরণ, ভুলে যায়নি ও বাঙালি রয়েছে কিছু জন। কবুল করুক রব মোদেরকে নাথবাবাগের ফুল, কবুল করুক রব মোদেরকে নাথবাবাগের ফুল। ধরা মাঝে যে প্রতিষ্ঠানের নাইক সমতুল, কবু অবিচার কারো সাথে যদি হয় কোনো ভুল, সবার নিকট ক্ষমা প্রার্থী আমি অধম নাজিমুল। তব সারিতে সামিল আমিও লিখলাম খাতার পাতায়, মোর কামনা ও গরব্বানা কবুল করো নিষ্কিপাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে নাজমুল হোসাইন ভাই শোনালেন। নাজমুল হোসাইন ভাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপায় আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ করতে চলেছি। এই জন্য আমরা সবাই অবগত আছি যে আমাদের মঞ্চে আমাদের শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় আমাদের অভিভাবক এবং শিক্ষক ডক্টর মাওলানা উবাইদুর রহমান সাহেব উপস্থিত আছেন। ওই জন্য আমি একান্ত অনুরোধ করব উনি আমাদেরকে কিছু নসিহতমূলক আমাদেরকে কিছু বাক্য বলে আমাদেরকে শোনাবেন। অনুরোধ করব। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। আজকের বিশিষ্ট মেহমান ও আমার ছাত্রবৃন্দু ভাইরা, আজকের প্রোগ্রাম আমাদের এই সালানা আঞ্জুমানের প্রোগ্রাম। আজকে খুশি আর দুঃখের দিন। খুশি এ মানে যে এখান থেকে এই ফ্যাক্টরি থেকে, নাদতুল উলামাতে একটা ফ্যাক্টরি, যেমন ফ্যাক্টরিতে বিজলি তৈরি হয়, কারেন্ট তৈরি হয়, সে মতো মাদ্রাসায় এখান থেকে আমরা ছেলে তৈরি করি। বিজলির ফ্যাক্টরি থেকে প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক ঘরে বিজলিকে পৌঁছানো যায়, কারেন্টকে পৌঁছানো যায়। সে মতোই এই ফ্যাক্টরি থেকে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে, প্রত্যেক বাড়িতে, প্রত্যেক স্টেটে, প্রত্যেক দেশে ইসলামের রোশনীকে প্রচার করা হয়, ফালানো হয়। এটা আমাদের একটা ফ্যাক্টরি। अगर আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কি করো, तो আমি তাকে জবাব দিই कि मैं इंसान बनाता हूँ। तो फिर সে ঘুরে দেখে कि इंसान কিভাবে বানাবো। তো আমি বলি আমি মাদ্রাসায় পড়াই। মাদ্রাসায় পড়াই তো পড়াই বলো, তোমার না না আমি ইনসান বানাই।
মাদ্রাসায় কি করা হয়? ইনসান তৈরি করা হয়, মানুষকে ভালো মানুষ করা হয়। এটা হচ্ছে মাদ্রাসার মেন কাজ। তো যাক, খুশির বিষয় এই যে আমাদের এখান থেকে এবার 28 জন আলী রাবে জি, কতজন না টোটাল 31, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, টোটাল 31 জন ছাত্র এবার এখান থেকে পাস আউট হচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, বহুত বড়ি তাদাদ, মাশাআল্লাহ। এখান থেকে 31 জন ছাত্র বের হচ্ছেন এবার। একটা খুশির বিষয় যে সবাই গিয়ে নিজের এলাকায়, নিজের স্টেটে দিনের আলোকে ফাইল প্রচার করবে। আর দুঃখের বিষয় যে আমরা তাকে ছাড়তে চাই না, কিন্তু বাধ্যতামূলক ছাড়তে হচ্ছে। তো এটা একটা খুশিরই বিষয় কি আমরা একটা ছেলেকে তৈরি করে এলাকায় পাঠাচ্ছে। কোনো প্যারেন্টস চায় না, একটা মেয়ের কথা বলছি, কি নিজের মেয়েকে অপর বাড়িকে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পাঠায় তো কাঁদে, কিন্তু ওটা হচ্ছে খুশির কাঁদা। সবাই প্যারেন্টস কাঁদে, ফ্যামিলি মেম্বার্স কাঁদে, কিন্তু ওই কাদার মধ্যে পার্থক্য আছে। ওটা হচ্ছে খুশির কাদা, যে একটা আমার মেয়ে অন্য বাড়িকে গিয়ে একটা নতুন সংসার গঠন করবে। তো সে মধ্যে আমাদের এই প্রোগ্রাম আজকে আমাদের ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না, কিন্তু ছাড়তে আমরা বাধ্য। কেন বাধ্য? যে এই আলো, এই রোশনি এখানে থাকলে হবে না, বলকে প্রত্যেক গ্রামে গিয়ে এই রোশনিকে যেন তারা ফাইলায় প্রচার করে, ওই জন্য এটাও একটা খুশির বিষয়। তো যাক, আলহামদুলিল্লাহ 31 জন ছাত্র এবার আমাদের এখান থেকে পাস আউট হচ্ছে, এখান থেকে ফারেক হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, আল্লাহ লাখ লাখ শুকর। কথা বলার অনেক কিছু আছে, কিন্তু কিভাবে আমরা হচ্ছি নায়েবে রসুল, তা আল্লাহ রসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে, কালকে বলেছিলাম একটা প্রোগ্রামে, কিভাবে উনি 23 ইয়ার্সে 23 সালের মধ্যে একটা কিভাবে তিনি ইসলামকে একটা আলামী মাযহাব, ইন্টারন্যাশনাল মাযহাব তৈরি করে কিভাবে উনি 23 ইয়ার্স একটা শর্ট টাইমের মধ্যে তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপনার কোনো ছেলে যদি, কোনো ভাই যদি বিড়ি পান করে, বিড়ি খায়, তো ওকে ছোটানো মুশকিল, ছোটাতে আপনি পারবেন না তাড়াতাড়ি। তো আল্লাহ নবী কিভাবে পুরো আরববাসী তারা শারাব পিত, জেনা, ব্যভিচার, অনেক নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল ওরা, কিন্তু আল্লাহ রসুল এত শর্ট টাইমে পুরো মক্কা মদিনা পুরো বিজয় কিভাবে করলেন উনি? এর পিছে কি আসবাব আছে, আর আমাদের কিভাবে নিজেকে তৈরি হতে হবে? ওই জন্য 3টি কথা ভালো মনে রাখবো ভাই। একটা হচ্ছে কি, हर दायीर জন্য, हर অ্যাঙ্কারের জন্য, हर স্পিকারের জন্য, हर মুদাররিসের জন্য, প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য 3টে জিনিসকে পালন করা খুবই প্রয়োজনীয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আপনার কথা লোক মানবে। তো আল্লাহ নবী, কেন আল্লাহ নবীর কথাকে মক্কাবাসীরা, মদিনাবাসীরা কেন তাড়াতাড়ি মেনেছিলেন? ওরা প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ রসুল ঝুট বলতেন না। প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ রসুল झूठ बोलते ना, अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोलते थे वो। और अल्लाह रसूल के नायब अल अमीन है ना, अस-सादिक, এগুলো লাকাব কে দিয়েছিল?
মুসলমান নয়, এগুলো লাকাব দিয়েছিল কুফারে কুরাইশ। আপ আমিন হ্যাঁ, আপ সাদিক হ্যাঁ। তো প্রত্যেক দায়ের জন্য কর্তব্য অপরিহার্য যে সে যেন ঝুট না বলে, ঝুট না বলে। একটা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আল্লাহ রসুল তিনি যা বলতেন তা করতেন। প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ছিল আল্লাহ নবীর, আজকের মতো নয়, আমাদের মতো নয়। तकरीर तो बहुत लंबी चौड़ी होती है ना, लेकिन उस पर खुद अमल नहीं करते हैं, इस वजह से कोई असर नहीं है। नहीं समझे आप? धुआंधार तकरीर होती है ना, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। क्यों? खुद अमल नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल प्रैक्टिकल लाइफ उनकी थी, जो कहते थे वो करते थे। अली मुत्तकी रहमहुल्लाह की किताब है कंसुल उम्माल, हदीस की कलेक्शन है, उसमें बहुत बड़ी किताब है। तो उन्होंने फ़िअली अहादीस को और कौली अहादीस को दोनों को अलग किया है कि कितनी फ़िअली अहादीस है और कितनी कौली अहादीस है। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़िअली अहादीस को गिनाया है, ताते देखे उन्होंने फ़िअली अहादीस को देखे फ़िअली कि अल्लाह रसूल प्रैक्टिकल लाइफ, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ चलो, जो कहते थे वो करते थे, आजकल की तरह नहीं। तो नंबर 1 कभी झूठ नहीं बोलते थे, और नंबर 2 जो कहते थे वो करते थे। सही से सुनिएगा इसको, यही आपके बेस आगे चलकर दावती काम का बहुत बड़ा ये सहारा बनेगा आपका, और लोग आपको मानेंगे। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा शफकत करने वाले, बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाले, शफीक मुशफिक, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर दाई के लिए जरूरी है कि वो शफीक बने, जल्दी वो गुस्सा ना हो। अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया आपको। आप यहाँ आए हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, आप अपने आप को ऐसे नहीं समझिएगा। हमेशा आप अपने आप को समाज से, सोसाइटी से एक अलग समझिएगा कि हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक अलग शनाख्त है। हमें हर आदमी हमें चाहे, और हर आदमी की नज़र में हम अच्छे हो, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हमेशा अपने आप को मुफीद साबित कीजिए। एक बात याद रखिएगा, हमेशा आप अपने आप को क्या कीजिए, मुफीद साबित कीजिए। अभी कमरे में हैं, 6 बच्चे हैं कमरे में रहते हैं, तो आप जुमेरात को कहीं चले जाते हैं तो 5 बच्चे, 5 आपके साथी वो परेशान हो जाते हैं कि भैया नहीं तो आज अच्छा नहीं लग रहा कमरे में, कितना अच्छा लड़का वो, क्यों? वो नहीं, कभी ये नहीं दिखता है ये किसकी बारी है, पानी खुद लाता है, पहले वुज़ू करके जाएगा, करने जाएगा, बोतल से पानी खुद भर के लाएगा। हर जुमा को वो खुद कमरा सफाई करता है। कोई लड़का बाहर की अपने साथी टिफिन उठा कर रखता है, वो है ना। तो इस तरह जब उनके अंदर ये औसाफ है, गट्स हैं, तो जब वो नहीं रहता है ना, तो वो 5 लड़के जो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ चला गया एक दिन। और उसी में एक साथ ऐसे भी होता है, तो जब कभी नहीं रहता है तो कमरे वाले जश्न मनाते हैं। वो नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है वो नहीं है तो अच्छा लग रहा है, जोर से मोबाइल में गाना सुनता है, रात को देर तक जागता है, सोने नहीं देता है, नहीं समझा, इधर उधर विदाउट परमिशन के सामान चुरा ले, मतलब खा लेता है, नहीं समझा, सलाद वगैरह लाते हैं वो खा लेता है, नमाज पढ़ने के खा लिया नहीं समझा। तो आप कह भी रहिए, मुफीद साबित कीजिए अपने आप को। ये तो कमरे की छोटी सी बात की। आप मदरसे में कहीं पढ़ाइएगा तो वहां भी आप अपने आप को मुफीद साबित कीजिए कि आप जिस दिन ना आए तो आपके तलबा परेशान हो, नहीं समझा। कहीं आप किसी कंपनी में हैं, आप छुट्टी लेकर घर आए तो मैनेजर परेशान रहे,
कि आप नहीं है तो चले गए, आप वहीं से सऊदी अरब से फ़ोन करें, भाई आप आ गए तो अच्छे नहीं लग रहा है, हमारे तमाम यहाँ एम्प्लॉय परेशान है आपके लिए, है ना। घर कहीं भी आप रहिए, अपने आप को मुफीद साबित करने की कोशिश कीजिए, है ना, मुफीद साबित करने की कोशिश कीजिए। और मुफीद नहीं बल्कि अनफा अपने आप को साबित करने की कोशिश कीजिए। हर जुबान की हर कौम की एक जुबान है। आज असर में जो किताब पढ़ी गई बहुत ही अच्छी बात उसमें आई एक कि हर कौम की एक जुबान है। हम लोगों की जुबान बंगाली है, किसी की जुबान उर्दू है, किसी की जुबान अरबिक है, किसी की जुबान हिंदी है, किसी की जुबान फारसी है। हर एक कौम का अलग जुबान है। लेकिन ज़माना की भी एक जुबान है। एज की जुबान क्या है? बंगाली है नहीं, हिंदी है नहीं। ज़माना किसको चाहता है? ज़माना के भी एक जुबान है। वो किसको चाहता है ज़माना? उसकी जुबान क्या है? आप अपने आप को अनफा बनाइए, नाफे बनाइए। आप अच्छे होंगे तो ज़माना आपको खींच कर लाएगा। वो आप किसी बहुत ही देहात में रहते हैं, बिल्कुल कट्टर देहात में, ज़माना आपको पास खींच कर जाएगा। वो नहीं समझा? आप वहां से बुलाएंगे, लेटर भेजेगा आपको। तो ज़माने की भी एक लैंग्वेज है। वो उस लैंग्वेज का नाम क्या है? अपने आप को मुफीद बनाना, अनफा बनाना। नहीं समझा? ज़माने की भी एक जुबान है, लेकिन उसकी जुबान हिंदी नहीं, उर्दू नहीं है। उसकी जुबान क्या है? अपने आप को नाफे बनाना है, अनफा बनाना है। नहीं समझा? अपने आप को मुफीद साबित कीजिए। तो आप कहीं भी रहिए, जंगल में रहिएगा तो वहां भी लोग आप खींच के लाएंगे कि मौलाना साहब चलिए, हमारे शेखुल हदीस की पोस्ट खाली है, हमारे वहां चलिए आप। शेखुल तफसीर की पोस्ट खाली है, हमारे वहां चलिए आप। ये जमाने की जुबान है, वो हिंदी और इंग्लिश की जुबान नहीं। उनकी अनफा, अपने आप को अनफा साबित किया, नाफे साबित किया। खैर, अभी हमने छोटी छोटी 4 आयतें तिलावत की है। बहुत ही कुरान करीम की बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। इसको आप हिर्ज़ा बना लीजिए, दिल में इसको बसा लीजिए। पहली आयत, इन्नहु मय्यत्तकी वयस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90। इन्नहु मय्यत्तकी वयस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। जो तक़वा इख्तियार करता है, जे डरे, तक़वा इख्तियार करता है, इन्नहु मय्यत्तकी वयस्बिर, और सब्र भी करता है, तो फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। तो अल्लाह ताला मुहसिनीन को अजर ज़ाय नहीं करता है। अरबी है, आप तर्जुमा भी समझ रहे हैं, है ना। इन्नहु मय्यत्तकी वयस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, एक आयत। दूसरी आयत मैंने तिलावत की, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए सबील पैदा कर देता है। आप मुत्तकी हैं, आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं। फ्यूचर के लिए आप वो ना कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह यानी हम आपको कोई ना कोई रास्ता, सबील आपके लिए पैदा करेगा। आपको सर्विस मिलेगी, आपको अच्छी जगह मिल जाएगी, हैं। और आपको वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और आपको इस तरह अल्लाह ताला देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कहां से रिस्क आ रही, कहां से आपको रोजी मिलेगी, आपको पता नहीं। अभी आपके पास पैसा नहीं, फौरन एक साहब फोन कर रहे, मौलाना साहब आइए। नहीं समझा? यहाँ भी तकवा की बात कही गई। यहाँ किसकी बात कही गई? यहाँ भी तकवा की बात कही गई। नहीं समझे? है ना। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक आयत नंबर 2। समझे? सूरह यूसुफ आयत नंबर 90, सूरह तलाक आयत नंबर 2। तीसरी आयत मैंने तिलावत की, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। हर डिफिकल्टी के बाद आसानियां हैं, हर प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन है उसका। अभी आपको परेशानी आई, उसका अल्लाह ने सोल्यूशन रखा है। अभी आपका नाम मौकूफ होगी आज, अब डरिए नहीं, कल बहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर सोल्यूशन रखा अल्लाह ने। फिर ये नहीं सोचिएगा कि कल 1 हफ्ता बाद आपका नाम मौकूफ नहीं होने वाला है, ये नहीं सोचिएगा। हो सकता है कि 1 हफ्ता बाद भी आपका नाम मौकूफ हो जाए,
फ़इन्न माल उसरी युस्रा, इन्न माल उसरी युस्रा, तब घबराए नहीं, फिर दोबारा फिर आपका नाम बहाल हो जाएगा। नहीं समझा? घबराने का नहीं है ना, घबराए नहीं। तो जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन इसलिए है कि अल्लाह ताला इंसान को ऐसे नहीं छोड़ता है ऐसे नहीं। बस आप घबराए नहीं, आप उम्मीद रखिए अल्लाह पर, उम्मीद रखिए अल्लाह पर, इंशाअल्लाह इन्नल्लाह माना, है ना, घबराने का नहीं। और कुरान हमेशा इनकरेजमेंट करता है, कुरान कभी भी डिस्करेज नहीं करता। पूरा कुरान पढ़े कभी डिस्करेज नहीं मिलेगा आपको, हमेशा इनकरेज करता है। वला तहिनु वला तहजनु वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम अल-आउना इन कुंतुम मुमिन। बस ईमान शर्त है, बस घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बस ईमान साथ में रखिए, बस, है ना, समझे ना। तो हमें घबराना नहीं है, कुरान हमारे पास है, हमको घबराना किसी तरह हमें घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तीसरी आयत हमने पढ़ी, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने तुम्हारे लिए एक किताब नाजिल की, है ना। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, क्या तुम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। तो कुरान फ़ीहि ज़िक्रुकुम, कुरान में हमारी तफसीलात हैं, डिस्क्रिप्शन है, पूरी तफसीलात किस में है हमारी। कुरान एक आईना है, जिस तरह हम अपने आईना में चेहरा देखते हैं नहीं, तो मोमिन के लिए क्या है, कुरान आईना है। हम कुरान में अपना चेहरा देख सकते हैं, जहां हम कितने पानी में हैं, है ना, समझ ना। आपको मालूम है जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा किसी ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक किस तरह था, तो आयशा ने क्या जवाब दिया, खुलुकुहु काना खुलुकुहु अल कुरान। नहीं समझा, खुलुकुहु अल कुरान। तो कुरान को आप हिर्ज़ा बनाइए। कुरान हमारे लिए ज़ाती किताब होनी चाहिए, हर एक की। अगर आपसे पूछे आपकी कौन सी किताब ज़ाती किताब है, पर्सनल बुक क्या है, किसको ज्यादा आप पढ़ते हैं, तो आप कुरान को पढ़िए। आप हर मसाइल, हर प्रॉब्लम का हल कुरान में है, हर मसाइल का हल कुरान में है ना। तो आप कुरान के लिए आप मेन तो वही है भाई, कुरान गैर नातिक है। कुरान क्या है, गैर नातिक है। और अल्लाह के रसूल क्या है, नातिक है। अल्लाह के रसूल, कुरान के शारे को क्या कौन है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है। नहीं समझा, अल्लाह के रसूल है। तो आप कुरान को सामने रखकर, अब कुरान ऐसी चीज है, ऐसी किताब है, आप हमेशा याद रखिएगा कि उस दिन में बताया था मैं, दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे इंसान कभी उकताता नहीं है, कभी उकताएगा नहीं। उसमें एक पानी भी है, पानी से कभी इंसान उकताता नहीं है। जो 100 साल के आदमी से पूछिए, दादा जान पानी के उकता गए क्या, कहने वो क्या कहेगा, पानी लाओ। आपकी उम्र 30 साल है, 25 साल है, 20 साल है, कभी आपने पानी से उकताया नहीं। पानी से इंसान उकताता नहीं कभी, है ना। उसी तरह बैतुल्लाह से इंसान कभी उकताता नहीं है। एक मर्तबा अभी हज नहीं किया आपने, उम्रा नहीं किया आप, है ना, लेकिन अब भी दिल चाहता है आपका कि उम्रा करने जाऊं। और इंशाअल्लाह इस हाल में जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, सब इंशाअल्लाह हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नहीं समझा, अगर आप ना करें तो मुझे बाद में फोन कीजिए, 30 साल बाद, 40 साल बाद, उस वक्त मैं नहीं रहूंगा। नहीं समझा, लेकिन करेंगे इंशाअल्लाह, है ना, करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक मर्तबा कर लीजिएगा ना, हाजी साहब बैठे हैं, एक मर्तबा कर लिए हैं तो बार बार दिल चाहेगा। कभी इंसान दिल नहीं भरता है, कभी बैतुल्लाह से, हरमन शरीफन से इंसान का कभी दिल नहीं भरता है ना। उसी तरह कुरान करीम से इंसान का कभी दिल नहीं भरता है, कभी दिल नहीं भरेगा। आप कितनी तिलावत करते हैं बताइए, आप सुबह तिलावत करते हैं, मौका मिलता है तो दोपहर के बाद भी करते हैं, फिर असर बाद करते हैं, तो लग रहा है रोजाना एक नई, मतलब हमको नई चीज मिल रही है कुरान में, है ना। कुरान से कभी किसी का जी भरा बताइए आप।
आप कोई भी किताब दुनिया में जितनी अच्छी नॉवेल हो, एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, 3 मरतबा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको नहीं पढ़ेंगे कभी, नहीं समझा। लेकिन कुरान 3 मरतबा का सैकड़ों मरतबा पढ़िए आप, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। आप बचपन से कुरान पढ़ते आ रहे हैं, आपका दिल कभी नहीं भरता, नहीं समझे आप, है ना। तो टाइम कम है, तो आप कुरान करीम को मेन वो बनाइए, अपना मेन किताब बनाइए। और उस कुरान की शारे क्या है? कुरान गायर नातिक है और अल्लाह के रसूल नातिक है, नहीं समझे आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो 3 औसाफ है बताया। और एक दाई के लिए बहुत जरूरी है कि आप झूठ ना बोले, आप झूठ नहीं बोलिए, और जो कहे वो करे। और तीसरी क्या है? तीसरी सिफत, जब आप मेहरबान बनिए, है ना, शफीक बनिए, ज्यादा गुस्सा ना आए आपको, जैसा गुस्सा ना करें। दाई अगर गुस्सा करेंगे तो नहीं होगा, गुस्सा को पी डालिए आप, जिसे अल्लाह के रसूल ने पी डाला था, है ना। तभी फिर आप इस्लाम को एक आलमी मजहब बनाकर, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने बनाया, उस तरह उसको हम लोग उसको बरकरार रख सकते हैं। और हम लोग का मेन मकसद इस्लाम, यहाँ इशाअत इस्लाम और तबलीग इस्लाम। आजकल ये भी हो गया है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं लोग, कि तब जो लोग तबलीग करते हैं वो कहते हम तबलीग कर रहे हैं, और जमात इस्लामी वाले कहते हैं हम लोग इशाअत कर रहे हैं। ये भाई कहाँ लिखा है भाई? दोनों हमको करना है। हम इशाअत इस्लाम भी कर रहे हैं और तबलीग इस्लाम भी कर रहे हैं, इसको तकसीम ना कीजिए, है ना। हम दोनों के लिए हैं, हम नदवी के तलबा दोनों को लिए हैं। हम इशाअत इस्लाम भी करेंगे और तबलीग इस्लाम भी करेंगे। हमारा मेन मकसद दीन की सरफराजी है। मेन मकसद क्या है? दीन को आगे बढ़ाना है। इसलिए आप आए हैं यहाँ, इसलिए आपको भेजा गया है कि इस्लाम को आप आगे बढ़ाइए, और हम इस्लाम के जो ट्रू मैसेज है, सच्चा पैगाम है, उसको हम आगे बढ़ाइए, है ना। उसके लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बस आपके लिए कुरान करीम, और कुरान करीम के जो शारे है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत, दोनों चीजें हैं। अल्लाह की किताब और सुन्नत को आप मियाँ फिल्मी आप फॉलो कीजिए, और इधर उधर नहीं, ईरान तुरान आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुरान को आप सही से पढ़िए। कुरान फहमी के 2 दर्जे हैं, इसको याद रखिएगा। कुरान समझने के 2 दर्जे हैं। एक दर्जा वो है कि तज़क्कुर बिल कुरान, याद रखिएगा। तज़क्कुर बिल कुरान का मतलब ये होता है कि कुरान में 114 सूरतें हैं, उसमें आप अभी जो आप छुट्टी में घर जाएंगे रमजान शरीफ में, आप क्या कीजिएगा? एक कॉपी बना लीजिएगा, और कम से जरूरी है कि आप 114 सूरतों को क्या कीजिएगा, है ना। हर सूरा में मेन थीम क्या है, मेन मौजू क्या है। सपोज सूरा फील को ले लीजिए, अलम तरा कैफ फ़अल में, इसमें मेन मौजू क्या है? अबरहा का वाकया है मिसाल के तौर पर। सूरा अस्र में मेन मौजू क्या है? इस तरह आप 1 महीने में अगर चाहे ना, रमजान में काम ज्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, तो उसमें आपका काम यह है कि तज़क्कुर बिल कुरान का काम आप इस रमजान तक इंशाल्लाह कर डालिए, है ना, कि कुरान में उसके लिए कॉपी बना लीजिए, और मेन थीम क्या है, और मारिफुल कुरान वगैरह आप रखिए। और मेन शुरू में दिया रहता है इस सूरा में क्या क्या है, क्या पैगाम है, क्या मैसेज हैं, उसको एक कॉपी बना के एक सूरा करके आप उसको पढ़िए। सूरा फातिहा में ये मैसेज है, सूरा बकरा में ये मैसेज है, ये इसको आप जरूर कीजिए, बड़ा फायदा होगा आपको, बड़ा फायदा होगा। आप उसके लिए आए ही हैं ना दुआ, है ना। तो आपको इसको याद रखिएगा। अभी बता रहा हूं, सुनिए। तो आपको ये काम करना है, ये 114 सूरतें हैं, तो हर एक का थीम क्या है, मौजू क्या है, कॉपी में आप कॉपी बनाइए, और एक 3-4 पेज में आप एक सूरा का खुलासा आप लिखिए। एक बात हर हाल में आपको करना है इंशाल्लाह कहिए। और दूसरा क्या है? तदब्बुर बिल कुरान। तदब्बुर बिल कुरान ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसके लिए वक्त चाहिए। कुरान का हर लफ्ज, पूरा कुरान नहीं, कुरान का हर लफ्ज, कुरान तो है ही, हर लफ्ज मौजज़ा है, मिराकल है। तो तदब्बुर बिल कुरान जो है बहुत ही मुश्किल काम है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरा बकरा और सूरा इमरान दोनों सूरा वो स्टडी कर सके और अल्लाह के प्यारे हो गए, आगे बढ़ ही नहीं सके वो, है ना। आता है समंदर है कुरान करीम, उसकी मोतियों को आपको निकालना, हमको निकालना है ना। मोतियों क्या, उसमें अंदर क्या हीरे हैं, क्या जवाहिरात हैं, उसको हमको निकालना है ना।
तो ये जो काम होता है, जैसे सूरह असर को ले लिया आप, सूरह असर छोटी सी सूरह है, छोटी सी सूरह है, लेकिन सूरह वल असर में क्या बताया कि इसका क्या मतलब होता है? वल असर पर 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा सिर्फ एक लफ्ज की तशरीह में 1 घंटा लगेगा वल असर में, नहीं समझा? इतना अथाह समंदर है। तो तदब्बुर बिल कुरान के लिए 15 मिनट आप निकालिए, 15 मिनट निकालिए और रोजाना 15 मिनट किसी भी नमाज में अभी से शुरू कर दिए ताकि आदत पड़ी रहे और घर जाकर आप इस काम को करें। और उसके शफतैन को बस हिलाइए, जुबानी नहीं, आप पढ़ रहे हैं लक़द अरसलना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, पढ़ रहे हैं तो मतलब अब तो आहिस्ता सोच रहे हैं, इस पर गौर कर रहे हैं क्या है आखिर में। कहते हैं फीही ज़िक्रुकुम, क्या जिक्र का मतलब क्या होता है ना, समझे ना? इस तरह आहिस्ता आहिस्ता शफतैन को, होंठ को हिलाइए और मतलब को दिल में लाइए और फिर आप कांटेक्ट कीजिए तफसीर से, क्या है इसमें जिक्र का क्या मतलब होता है, नहीं समझा, है ना? तो इस तरह तदब्बुर बिल कुरान का भी आप उसके लिए आप वक्त लगाइए, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन लोग लगाते हैं, करते हैं। हमारा काम, आपका काम वही यही तो है। आप नायब रसूल हैं, नहीं समझा? आप नायब रसूल हैं तो कुरान और अहादीस से, नहीं समझा? अहादीस क्या है? अल्लाह के रसूल की सीरत है, और कुरान क्या है? वो भी अल्लाह सीरत तशरीह करने वाला अल्लाह के रसूल हैं, नहीं समझा? तो ये तदब्बुर बिल कुरान और तज़क्कुर बिल कुरान तो आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये तो आसान है, आप समझ जाएंगे, एक ही रमज़ान में भी हो जाएगा इंशाल्लाह, पूरा रमज़ान में। लेकिन तदब्बुर बिल कुरान आहिस्ता आहिस्ता करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और कुरान पर अमल करने की, ख़ास तौर से कुरान करीम और अहादीस पर अमल करने की तौफीक दे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमने आपको बताया कि हम झूठ ना बोले। आजकल हम लोग मामूली, हालांकि ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ भी झूठ बोल देते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं वो ना बोलो, नहीं समझा, है ना? तो हम लोग झूठ को बिल्कुल, उसकी क़बाहत ख़त्म हो गई है, झूठ की क़बाहत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उलमा में भी और तलबा में भी झूठ बोलने में कोई ज़रा भी तरद्दुद नहीं, फ़ौरन झूठ बोल देते हैं, फ़ौरन झूठ बोल देते हैं, नहीं समझा, है ना? मान लो वो कहाँ है, सीट में नहीं है तो कहते वो बाथरूम गया है, हालांकि घर गया है नहीं समझा, है ना? घर गया है तो आप घर बोल दो, घर गया है तो बाथरूम गया तो क्या, क्यों बोल रहे हो? मतलब झूठ बोलने में दूसरे का नाम पुकारते हैं, वो अच्छा नहीं है, लब्बैक कह रहे हैं आप, अरे बहन लब्बैक क्यों बोल रहे हैं? घर गया कि नहीं, लब्बैक क्यों बोल रहे हो? तो इस क़बाहत को समझिए ना आप, तो ऐसी आपकी बात ऐसी मानी जाएगी। 3 बातों की वजह से अल्लाह के रसूल इस्लाम को एक आलमी मजहब बनाकर पेश किया। कभी झूठ नहीं बोलते, याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है ये। कभी झूठ नहीं बोलते थे, आप झूठ नहीं बोलिएगा तो लोग आपके पास आएंगे, आपके पास अपना पैसा रखेंगे वो कि भाई साहब रखिए, नॉन मुस्लिम में रखेंगे आप, क्यों? झूठ नहीं बोलता है। जो झूठ नहीं बोलता है कैसे धोखा कैसे देगा वो नहीं समझा, वो धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलता है, धोखा कैसे देगा वो, है ना? ये है। तो खैर बहुत बहुत मुबारक हो हम लोगों को कि आप यहाँ से फारिग हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं यहाँ से। और इसको याद रखिएगा, आप नदवे के इस तलबा हैं, आपको कहीं भी, आप किसी भी मैदान में जाइएगा, कहीं भी आप चले जाइए, आपको उस दिन में हमने मणिपुरी प्रोग्राम में बताया था, आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। आप सुनिए सही से, आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा इसलिए मिलेगा कि आप नदवे के तालिब इल्म हैं। जो नंबर आपको मिलने वाला वो तो मिलेगा ही, है ना? जैसे 60 नंबर आपको मिला मिसाल के तौर पर, तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? आप नदवे से पढ़े हैं। कहीं भी आप जाइएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कभी मौका मिले तो आप मुझे फोन कीजिए, सर आप सही बोल रहे थे। एक जगह इमामत के लिए गया, नहीं समझा, तो वहां 3-4 और थे और मदारिस के फारिग थे, हम नदवे से थे, तो हमको उन लोगों को अलग अलग मिला, लेकिन हमें एक्स्ट्रा 10 नंबर मिला और मुझे इमाम के लिए रखा सिर्फ नदवे के होने पर। कहीं भी आप जाइए, नहीं समझा, हम यूरोप का भी सफर कर चुके हैं और गल्फ में तकरीबन 10 कंट्री के सफर कर चुके हैं, नहीं समझा। तो कहीं भी जाते हैं तो हमें नदवे के होने की वजह से सिर्फ, है ना, 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है कि आप नदवे से आए हैं, नहीं समझा, है ना। तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन ये जो लाइन आपने इख्तियार किया है, ये आसान काम नहीं है मौलाना, ये नबूवती काम आसान काम नहीं है, लेकिन इसका जो बदला तो बहुत है माशाल्लाह। तो हमको आखिरत को देखना है ना, आखिरत को देखना है, उसी तरह हमको चलना है। इस दुनिया में क्या है, ये दुनिया एक साया की तरह है,
एक मुसाफिर की तरह है, अभी है कल नहीं है। अभी हम अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है कल रात को इंतकाल हो जाए, नहीं समझे, रात को इंतकाल हो जाए। हाँ, कोई बैद नहीं, कोई बैद नहीं, क्या हैसियत है हमारी। आखिर में बस 4 बात मतलब टाइम हो गया। 4 हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, हर जगह हम इसको तकरीबन कहते हैं, उसको सुन लीजिएगा। हम एक अच्छी जिंदगी, आप मौलाना से पूछिए, मौलाना अब्दुल्ला भाई आपकी आप कैसे हैं, तो मौलाना अब्दुल्ला कहेंगे सर मत पूछिए, बहुत परेशान हैं। नहीं समझे। नजमुल भाई से पूछिए, नजमुल भाई क्या हाल है, ठीक है, तो कह रहे मौलाना साहब बहुत मत पूछिए, बहुत परेशान हैं, नहीं समझे। अरे ओ सॉरी होते पारे। इसने না না আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ बस हाँ तो বলছিলাম যে एक टेंशन फ्री लाइफ हम कैसे गुजारें, उसके लिए 4 बातें याद रखिएगा। 4 बातें। एक पहली बात, आप अल्लाह पर भरोसा कीजिएगा, है ना। रिपोज फुल ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर रखिए कि दूसरे का नहीं, अल्लाह। हर चीज अल्लाह से मांगिए, आप कुछ भी हो अल्लाह से मांगेंगे हम। एक। दूसरी बात, आप तकब्बुर ना कीजिए, डोंट बी एरोगेंट, मुतकब्बिर ना बनिए। आप तकब्बुर करने लगेंगे, तकब्बुर की हश्र कुरान में बहुत है। जिन लोगों ने भी तकब्बुर किया अल्लाह ताला धंसा दिया दुनिया में उसको, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। तो आप तकब्बुर ना कीजिए, आप कुरान पढ़िए तो आप पता चलेगा। हाँ, आप किस बात पर तकब्बुर कर रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, अभी एक फोड़ा निकल आएगा आपका चेहरे में, कल कोई देखेगा नहीं आपकी तरफ, नहीं समझा। शमीम भाई आप चेहरा ना देखिए, आपको अल्लाह ताला खुश रखेंगे इंशाअल्लाह। आप बहुत आपके बहुत मुरीदीन होंगे इंशाअल्लाह, नहीं समझा। हम भी आपके मुरीद हैं, नहीं समझे। आप घबराए नहीं इंशाअल्लाह, है ना। हाँ, तो तकब्बुर ना कीजिएगा। आप चंद अरबी के जुमले बोल रहे हैं इसलिए बोल ले रहे हैं, इस तकब्बुर कर रहे हैं। अरे भाई अमऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, आपको क्या आता है, नहीं समझा। तकब्बुर ना कीजिए, है ना। तीसरी बात, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की आप खिदमत कीजिए, है ना। अभी तो आप करेंगे वालिदैन की खिदमत, हाँ, क्यों, आप तलबा हैं, लेकिन शादी के बाद आप कितने पाने में उसे पता चलेगा, नहीं समझा। शादी के बाद पता चलेगा आप कितने पाने में हैं, नहीं समझा। हाँ, तो आपके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो उससे बढ़कर कोई पीर नहीं दुनिया में, उससे बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा पीर नहीं है। किसी उस्ताद की आप बात नहीं मान रहे हैं तो ये क्या है, बेअदबी है बस। अगर आप वालिद साहब की, वालदा की बात नहीं मान रहे हैं तो ये गुनाह है, बाकायदा गुनाह, नहीं समझा, गुनाह है। और हमारी आप बात नहीं मान रहे हैं तो बेअदबी है, उस्ताद है बेअदब, बस यही इतना, बस कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आप वालिदैन की बात नहीं मान रहे हैं तो गुनाह लिखा जाएगा। और इस दुनिया में जो वालिदैन की बात नहीं मानते हैं अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में दिखा देते हैं। बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें हैं, इसी दुनिया वाला दिखा देते उसको, है ना। उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती है ना। उस समाज में तो रहता है लेकिन समाज में कोई इज्जत नहीं होती उसकी, है ना। चौथी बात, फियर ऑफ अल्लाह, खौफ खुदा आप पैदा कीजिए अंदर। चाहे निगराह हो या ना हो, आप नमाज पढ़िए, नहीं समझा। निगराह हो या ना हो, नमाज पढ़िए। आप खौफ खुदा पैदा कीजिएगा तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। जिस कंपनी में आप हैं, जहां आप, जिस मदरसे में आप मुदर्रिस बनेंगे,
हाँ, वहाँ भी आपके मोहतमिम साहब बहुत आपको लाइक करेंगे। क्यों? कभी कभी बहुत मोहतमिम साहब नहीं है तो टीचर क्या करते हैं, आपस में आके 1 घंटा देर से आया है ना, आके है ना क्या कहते टीचर्स रूम में बैठे रहते हैं। क्यों? मोहतमिम साहब नहीं है। नहीं समझा आप? तो नहीं, खौफ खुदा पैदा कीजिए। हर जगह कमरे लगे होते हैं, देखिए यहाँ भी कमरे लगे हैं, दारुल उलूम में कमरे लगे हैं, गेट में कमरे लगे हैं, बैंक में कमरे लगे होते हैं, रेलवे स्टेशन में कमरे लगे होते हैं, एयरपोर्ट पे कमरे लगे होते हैं, कहाँ भी जहां भी जाइए वो कमरे लगे होते हैं। लेकिन हो सकता है इस हाल का जो कैमरा है ये सही भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का एक कैमरा है, अल्लाह ताला का भी एक कैमरा है, वो बैटरी लेस है, उसमें बैटरी की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस कैमरे काम करे या ना करे, है ना, लेकिन अल्लाह ताला का एक कैमरा है। सूरह हदीद आयत नंबर 4, व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सूरह हदीद आयत नंबर 4, ये अल्लाह ताला का कैमरा है। व हुवा मअकुम, ही इज विद यू वेयरएवर यू गो। आप जहां भी जाएंगे वो आपके साथ है अल्लाह, है ना, समझे ना। तो आप खौफ खुदा पैदा कीजिए, तो फिर हर आदमी आपको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। अल्लाह से डरते हैं, और जो बंदा अल्लाह से डरता है, जो बंदा अल्लाह से डरता है तो उसको कभी चिंता की, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है ना। उसको दुनिया की कोई ताकत उसको अपने मकसद से हटा नहीं सकती है और उसको नाकाम भी नहीं कर सकती है, जो अल्लाह से डरता है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। इस तरह मैंने कई याद वो की। अब जो निकाह, जब मुहाफिज भाई का अभी अनकरीब निकाह होने वाला है, जो निकाह में क्या आयत पढ़ते हैं, पहले आवत सब तकवा पर, तकवा 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 तकवा, नहीं समझा? सब तकवा तकवा पर। तकवा है क्या चीज? तकवा है क्या? खौफ खुदा। खौफ खुदा का नाम तकवा है। आप बहुत मुसल्ली हैं, बहुत नमाजी हैं, बहुत रोजेदार हैं, इसको तकवा नहीं कहते हैं, खौफ खुदा का नाम तकवा है। तकवा एक अहम सिफत है, खौफ खुदा, इसको तकवा कहते हैं, नहीं समझा? अब 10 मंथ हज कर लिए बहुत मुत्तकी हैं? नहीं समझा? आप बहुत नमाजी हैं, बहुत ये तकवा है नहीं, बल्कि खौफ खुदा पैदा कीजिए, उसको तकवा कहते हैं, खौफ खुदा, है ना। तो इन चारों बातों का फॉलो करेंगे तो आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारेंगे। आप अल्लाह पर भरोसा। अभी आप यहाँ अल अरबिया फारिग होकर गए, मिसाल के तौर पर आप अपने बड़ी बहन के घर गए रमजान से पहले, तो आपने सोचा हम राबिया पास करके गए, नदवे से पास आउट होकर गए, हमारी बहन कम से कम, है ना, एक तो कुर्ता का जोड़ा तो मिलेगा वहां से, नहीं समझा, है ना। तो वहां गए, दावत वो खाए, उसके बाद आप आ रहे हैं, आपको कहते हैं भैया फिर आना, नहीं समझा आप, तो आपका मूड खराब हो रहा है थोड़ा। 500 रुपये भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं, ऐसे दावत तक खाना तो बढ़िया दिया, आप घबराए नहीं, घबरा, अल्लाह से मांगिए आप, नहीं समझा। आपके बड़े भाई का फोन आया, भैया इधर उधर जा, उधर बहन का घर तुम गए थे, इधर से आना और रात को यहाँ आना जाना। आप फिर बड़े भाई के घर के चले गए, वो आपको उन्होंने कहा कि रात रहो और कल फिर हम कल संडे है, हमारे साथ मार्केट चलना है। आपको कुर्ता भी दिए, है ना, और 2000 रुपये भी दिए, हाथ में दिए, नहीं समझे आप। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह देने वाला अल्लाह है, घबराइए नहीं आप। कभी कभी होता है ना, तो हो सकता है उस वक्त जो है उनके घर में पैसा हो ना, कभी होता है, कभी कभी हो सकता है। तो कहने का मतलब चारों चीजों को आप फॉलो कीजिएगा, टेंशन फ्री लाइफ गुजारिएगा। वो नहीं दिया, ये हमारी इज्जत नहीं की, कोई मसला नहीं। मुजफ्फर भाई कह रहे सर आप कहाँ हैं, आप आइए हमारे यहाँ, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। अल्लाह से मांगिए, टेंशन लेने का नहीं है। टेंशन फ्री लाइफ आप कैसे गुजारेंगे? अल्लाह पर भरोसा कीजिएगा बस आप, है ना, अल्लाह पर भरोसा कीजिए और तकब्बुर ना कीजिए और वालिदैन की खिदमत कीजिए और फियर ऑफ अल्लाह, खौफ खुदा पैदा कीजिए। चारों चीजों को फॉलो करके चलिए, इंशाअल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया मारुति और फिल आखिरत मारुति व किना अज़ाबन नार। नहीं समझा? हसना, हसना का मतलब मारुति, नहीं समझा? तो इन चंद बातों पर गुफ्तगू कहने को बोल, लेकिन जो 3 चीजें बताया अलग, उसको फॉलो करके चलिएगा, झूठ ना बोलिएगा, बिला जरूरत झूठ ना बोले, और हाँ जो कहे उस पर अमल करें। अल्लाह हमें भी तौफीक द अमल करने की, है ना। और फिर बस मेन तो भाई जन्नत है, मेन तो भाई जन्नत है। जन्नत आपको मिल गई तो आपका अगर बिल्डिंग ना मिले उस पर कोई अफसोस ना कीजिए आप, है ना। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार फ़क़द फ़ाज़, बस इसको आप फॉलो करके चलिएगा। बहुत मुबारक हो फारिगिन हजरा काम से जो फारिग हो रहे हैं बच्चे, और आप इस एक दाई बनिए और आप इस्लाम के नुमाइंदा हैं।
मेन आप इस्लाम के नुमाइंदे हैं और उसके साथ नदवा जुड़ा हुआ है कि आप नदवे की नुमाइंदे हैं। मेन तो आप इस्लाम का नुमाइंदा हैं। आप जहाँ भी जाइए नदवे का नाम रोशन कीजिए, इस्लाम का नाम रोशन कीजिए और आपकी कोशिश ये हो कि आपसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आपसे लोगों को क्या पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। बस इन चंद बातों पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अमाल बना আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের দিনে আমাদের সম্মানীয় শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু নসিহতমূলক বাক্য লাভ করলাম এবং আমরা ভবিষ্যতে কি করব, কেমনভাবে চলব, মানুষের সাথে কেমন শিষ্টাচার করব, এই সম্পর্কে আমাদের সম্মানীয় শিক্ষক আমাদের কিছু নোটস দিলেন। আমরা ভবিষ্যতে এর উপর চলার সবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপা আমরা আমাদের প্রথম পর্বকে সমাপ্ত করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য আমরা কিছু কথা মন দিয়ে শুনি। যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক ভাই আছেন আপনারা যাবেন না, আপনারা এখানে নামাজ পড়বেন এবং যে সমস্ত কাজ আছে আপনারা এখানেই করবেন। আর যে সমস্ত ফারিগিন ছাত্ররা রয়েছে তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব, যাদের যে সমস্ত শিক্ষকদের নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করব। এবং ফারিগিন ছাত্রদের আরও অনুরোধ রইল, আপনারা দেরি করবেন না, আপনারা অর্থাৎ খুবই দ্রুত চলে আসবেন। এবং সমস্ত ছাত্রদের উদ্দেশ্যেও বলা হচ্ছে, এর যে পরবর্তী পর্ব রয়েছে এটা হলো আমাদের মেন পর্ব। আমরা অযথা কেউ সময় নষ্ট না করে আমরা সব নামাজ পড়ে এখানে দ্রুত চলে আসব। এই বলে আমাদের প্রথম পর্ব এখানে সমাপ্ত করলাম। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। नमाज पढ़ के आप लोग आ जाइए मेन प्रोग्राम